All right, this one. So chapter number 2 deals with the electrostatic potential and capacitance. तो दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं यहाँ पर. And you may be wondering why these concepts are developed. Once we have the electric field, we have the electric forces, then what is the need of further physical quantities? So in fact, electric potential and potential energy both are very handy in conservative forces. What is happening जब conservative forces है तब क्या होता है? I mean जब in fact प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ना. तो डिस्टेंस जब चेंज हुई तो फोर्स विल आल्सो चेंज, एक्सेलरेशन विल आल्सो चेंज. तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की केस हो जाते हैं वो. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द velocity and positions of the charged particle after some time. So kinematic equations cannot be used for that. Variable conditions are very difficult to use for variable conditions. Therefore, concept of potential energy and after that potential was developed. So it is very handy in calculations when the variable forces occurs, and so we can use this concept. We can use this potential energy and potential to get the calculations easily done. तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है ऑलवेज, विच इज वेरी हैंडी इन कैलकुलेशंस. ठीक है. तो पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले let us define the potential difference between the 2 points in electric field. Suppose we have the electric field like this. Electric field present है यहाँ पर. It may be uniform or non-uniform, doesn't matter. तो एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है. इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है. तो इट इज रिलेटेड विद द वर्क डन. You carry 1 coulomb charge in your pocket and move from A to B through any path. Conservative forces में path पे depend नहीं करते. So whatever the work you do from going from A to B slowly without any acceleration, that much will be the potential difference. The potential difference is not the single term. It is related with the work done per coulomb charge. In shifting 1 coulomb charge from A to B, whatever work you are doing, that much potential difference will be there between the two points. ठीक है. So it is related to the work done. Potential difference between 2 points is the work done by external source. External source means you and me. Internal means electric field. We are not interested in electric work done of electric field. We are interested how much we do the work in carrying 1 coulomb charge. In shifting 1 coulomb charge between 2 points slowly. Slowly means you don't do extra work. नहीं तो kinetic energy भी उसमें आ जाती है. If you start running from A to B and increase your speed, you have to do the extra work. But we need minimum work without any acceleration, without any increase of speed. Either you move slowly or you move with the constant velocity. है ना? Don't change the velocity. है ना? So if you are shifting, you may not always have 1 coulomb charge. Suppose we have the Q0 coulomb charge, तो divide कर देंगे work done per unit charge. Then potential difference between A and B is given by work done by you or me, which is also called external source, divided by charge Q0. So this will automatically be work done per 1 coulomb charge. Total charge से divide कर देंगे तो 1 coulomb charge का work done मिल जाता है. So that's how potential difference goes between 2 points. It is the work done by external source per unit charge, per unit test charge we can call it. So potential difference is work done per unit charge. It is the scalar quantity. Potential difference is the scalar quantity. इसमें देखो final point का you are starting from A and going to B. So here comes VB minus VA. डिफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल जनरली लिखते हैं, है ना. फाइनल पॉइंट किस पे गए? बी पर. इनिशियली ए पर थे, तो वी बी माइनस बी है.
ठीक है, तो इट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ डिपेंडिंग अपॉन, सपोज निगेटिव चार्ज लेके जा रहे हैं तो माइनस साइन यहाँ आएगा, पॉजिटिव वर्क हुआ तो ऊपर प्लस आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स एसआई यूनिट विल बी व्हाट, वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है, तो जूल्स पर कूलम, बट इट हैज द मेन यूनिट आल्सो, ये डिराइव्ड यूनिट है, मेन यूनिट इज वोल्ट, so you can write this shorter unit volt, and don't forget this joules per coulomb. Sometimes they give you which physical quantity has this unit and whether vector or scalar. So it is the potential, electric potential difference, and it is a scalar quantity. It can be positive or negative, both. And of course स्केलर ऊपर भी लिख दिया मैंने, यहाँ भी लिखा है, ओके नहीं, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इट इज स्केलर since it is scalar, therefore use proper sign of the charge. I told you अगर माइनस चार्ज है तो you put it माइनस चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं तो you have to take माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। You don't miss the minus charge here, otherwise your mass will be minus. I told you स्केलर क्वांटिटी में माइनस होता है तो लिखना जरूरी होता है, वेक्टर में we don't do, we do the direction separately, magnitude separately. So independent of path followed, you go directly or go indirectly. जैसे change of internal energy है ना, is state process independent of the process followed. Similarly here also potential difference is independent of the path followed. Conservative forces में initial and final positions matters. If you come back here, if you go here, come back, work done will be 0. एक तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ नेगेटिव होगा, and in closed path work done will be 0 conservative forces. ठीक है, तो this was the potential difference, but we had to define the potential. In fact, we are dealing more with the potential most of the time. So let us see how do we define the potential. Suppose A को infinite पे भेज दो, then you carry 1 coulomb charge from infinitive to point B. So whatever work you do, that will be potential at point B. Work potential की definition infinite से आती है. Let us see that now. Let's see that now. How do we define the potential? At any point in the electric field. So electric potential at any point in electric field is the work done by external source to shift 1 coulomb charge from infinitive to that point. A को infinite पे भेज दो. A is at infinity. ठीक है, A where it is at infinity. इनफाइनाइट से चार्ज 1 कूलम चार्ज को पकड़ो और B पर लेके आओ थ्रू एनी पाथ. So whatever work you have to do, that will be stored in the form of potential energy. I mean, that will be called potential at that point. ठीक है, तो if we shift Q naught charge from infinity, यहाँ पे Q naught है और उसको लेके आ रहे हैं B पर, we are bringing to the point B. If we shift Q naught charge from infinity to the point B, to that point, मतलब B हो जाएगा. Then from previous relation, अभी हमने जो पढ़ा था VB minus VA, तो इनफाइनाइट पे VA will be 0 because इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो उसका इफेक्ट इनफाइनाइट पे नहीं रहेगा.
इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है इंफिनिटी पर जाके, तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा, तो वीए विल बी जीरो एंड वीबी को क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट बी विल बी टर्म्ड एज वी, उसको वी लिख देंगे बिकॉज अभी वी हैव द सिंगल पॉइंट, तो पोटेंशियल एट बी विल बी टर्म्ड एज वी, तो ये हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा वी। एंड राइट हैंड साइड में वर्क डन, ये जो वर्क डन है ये कहाँ से इन्फिनिटिव टू पॉइंट बी तक का है, दिस वर्क डन। बी पर हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन इन द सराउंडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तभी तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन में क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एंड F इज इक्वल टू Q इनटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा। क्लियर? तो हाउ डू वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द वर्क डन टू शिफ्ट द 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इनफाइनाइट से वहां तक 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। इफ यू हैव Q नॉट कूलम चार्ज तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो वर्क डन पर, इट इज कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट चार्ज। Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, है ना, इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे, इस टेस्टिंग के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इट इज हेल्पिंग यू आउट। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, और ये भी एक्सटर्नल ही रहेगा, दिस विल बी एक्सटर्नल वर्क डन, external source, work done by external source. Mind it, electric field will also do certain work. We are not interested in that at all. How much we are doing infinite से charge को लाने में, that matters. तो potential कैसे define करेंगे? This is also work done per unit charge in shifting the charge from infinity to respective point in the field where we are defining the potential. तो short definition ही लिखो, work done by external source to shift 1 coulomb charge from infinity. So this definition is okay. यहाँ से यहाँ तक. And then you can write this direct formula. इसके बाद ये लिख सकते हैं. This you can skip. And unit वही रहेगी. Volt or joules per coulomb. Scalar है. ठीक है. So is there any problem in this concept? Potential is work done per unit charge. From shifting it from infinitive to that point slowly. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. yes, sir. तो Yes, ओके राइट, sir. जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, तो इसी से हमने फिर डेरिवेशन किए थे, मोर पॉइंट चार्ज की फील्ड निकाली थी, है ना, और सिमिलरली हियर आल्सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। सपोज हमने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा, उसका पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी पर, आर डिस्टेंस पर, तो बट यहाँ पे वर्क डन निकालना पड़ेगा। वहां पे तो फोर्स का कूलम्ब्स लॉ से फार्मूला था कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बट यहाँ पे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा। दैट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड जॉब, लेट्स डू दैट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का बना लिया हमने, अभी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना है हमें, एंड बाकी मल्टीपल पॉइंट चार्ज का भी निकालेंगे। ठीक है, तो okay, this question we can take it. Find the work done by external source to shift one electron from infinitive to the point where potential is 10 volt.
फार्मूला लगा दो. Okay, you can do this using the formula V is equal to W by Q और Q naught. Q naught की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा. Now you are shifting the electron. ठीक है. Do you remember? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? Refer the notes and do it. All right. Saranya has joined. Are you there, Saranya? Okay. Now let us see potential of point charge at any point. जैसे electric field का derivation था. Okay, one more point I want to explain you first. देखो, prove that work done by electric field, that is conservative field, is equal and opposite to the work done by external force when we shift charge without acceleration. Without acceleration means no change of velocity, और slowly कर लो. ठीक है, ये चलेगा, no problem. So let us do equal and opposite. So far I have been telling you work done by external source. We are not interested in work done by electric field. But let us see how much it comes. तो देखो, work done by all sources is equal to change of kinetic energy होती है ना. तो work done by all sources यहाँ पे कौन कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है और work done by external source है ना. दे आर मेंशनिंग एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम वर्क करते हैं तो वी आर कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटरनल सोर्स. तो दोनों का मिला के चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. बट एक्सीलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो जीरो हो जाएगा. सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, है ना. Therefore, the work done by electric field is equal to negative of work done by external source. तो सपोज एक्सटर्नल सोर्स ने 100 जूल वर्क किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना करेगी? -100 जूल. दोनों का मिला के जीरो हो जाएगा, बिकॉज राइट साइड में जीरो. जितना तुम काम कर रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट वर्क करती है. इसीलिए तो हमने वर्ड यूज किया विदाउट एक्सीलरेशन और स्लोली और कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना. तो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. तो हमें मिनिमम वर्क करना है ना. एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दो बस, स्लोली और विद द कांस्टेंट स्पीड विदाउट एनी एक्सीलरेशन. ठीक है. तो जितना हम वर्क करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अपोजिट वर्क करती है, एंड दैट दोनों मिला के जीरो वर्क करते हैं. दिस इज अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं उसको, वर्क पर एनर्जी में. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे दो फोर्सेज हैं या दो सोर्सेज हैं. वन इज V, अदर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. वन इज एक्सटर्नल सोर्स, अदर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पॉजिटिव करेगा दूसरा नेगेटिव करेगा तभी तो जीरो आएगा. अगर एक्सटर्नल सोर्स से नेगेटिव वर्क किया तो इसने पॉजिटिव किया होगा, देन ओनली इट कम्स जीरो. एडेड टुगेदर इज जीरो. कॉमन सेंस. ठीक है. तो दिस वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स लिखा था, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स से डील किया था हमने. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. तो कैन वी डू दिस डेरिवेशन? यस. अभी वी हैव द 5 minutes. यस, वी हैव टू गो स्लाइटली फास्ट. देखो, तो पहले तो हम एंड रिजल्ट लिख देते हैं फिर डेरिवेशन करते हैं. देखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q है और R डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है. तो इट इज गिवन बाय KQ by R, दैट इज
के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 Q बाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड था तो क्या डिफरेंस था, यहाँ पे मॉड था, यहाँ पे स्क्वायर था। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल इट इज Q, हमने मॉड में नहीं लिखा है, therefore if it is minus you have to put it minus। और यहाँ पे डिस्टेंस का डायमेंशन भी सिंगल हो गया, r है नीचे। So this comes from derivation, we are doing it। And again let me remind you, it is scalar quantity, unit is volt, and charge अगर माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। ठीक है, तो derivation can we see, derivation is slightly complicated, therefore they avoid to ask in the board's examination, but still it is there in the textbook, so you have to know, sometimes if it is asked you have to derive it। देखो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाल देंगे। व्हाट वी आर डूइंग, लेट मी टेल यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकालना आसान है, जबकि हमें चाहिए क्या, एक्सटर्नल का चाहिए। तो एक्सटर्नल का वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना आएगा उसको माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल का मिल जाएगा, और फिर फार्मूला में पुट कर देंगे वर्क डन फ्रॉम वर्क डन एक्सटर्नल, सो डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को हम शिफ्ट कर रहे हैं इन्फिनिटिव से, तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू बचेगा यहाँ पर। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटिव निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले निकाल देते हैं, वो इजी होता है। फिर उसको माइनस कर देंगे तो एक्सटर्नल का मिल जाएगा, बिकॉज डेफिनेशन में एक्सटर्नल है। तो लेट्स डू दैट। कंसीडर चार्ज क्यू हियर एंड क्यू नॉट को, और हमें इनफाइनाइट से क्यू नॉट को लाना है, नहीं आर पर लाना है, यहाँ पर कहीं पर। तो हमने बीच में कहीं पर हमने एक्स डिस्टेंस पर पहले लाया उसको, है ना, एक्स डिस्टेंस पे लाया। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, कंसीडर चार्ज क्यू, इट्स फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर की जगह एक्स डिस्टेंस दिया हमने, जनरल डिस्टेंस है एक्स। तो इतना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो अभी ये थोड़ा सा इसको अगर शिफ्ट किया हमने बाई डी एक्स, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन शिफ्टिंग इट बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है ना, ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी एक्स, अगर हम ज्यादा दूर गए तो वेरी वेरी क्लोज रहना पड़ेगा, सो दैट दिस फोर्स कैन बी टेकन एज ए कांस्टेंट। तो डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डी एक्स कॉस जीरो, क्योंकि फोर्स भी इधर ही है, या भी इधर ही रहे, इसलिए कॉस जीरो हो गया। एफ डी एक्स बचा, सेम डायरेक्शन में जाना, कॉस जीरो विल बी 1। तो एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, ही गुलाम वाले, के Q1 इज Q2 इज Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मिल गया वेरी स्मॉल डिस्टेंस का वर्क डन। बट हमें निकालना कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से इन्फिनिटिव से आर तक आना, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर आना, जहाँ पे पॉइंट पी है ना। सपोज वी टेक द पॉइंट पी हियर विच इज एट डिस्टेंस आर, वहां पे हमें फील्ड पोटेंशियल निकालना है, तो हमें इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने का वर्क करना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटिव टू आर। ठीक है, तो ये इसको हमने लिख दिया, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, दिस विल गिव यू टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और राइट साइड में क्या होगा, इसकी लिमिट आ जाएगी जीरो से इनफाइनाइट से लेकर आर तक, इनफाइनाइट से आ रहा है, जीरो से नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट से आर तक आ रहा है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या है, ये दोनों, इसको बाहर निकाल लो, यहाँ पर आ गई है, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एक्स टू द पावर -2। इंटीग्रेशन में पावर प्लस हो जाती, +1, और नीचे भी वही आती, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस, और नीचे भी -1, एक्स टू द पावर n वाला। डू यू रिमेम्बर द फार्मूला, यहाँ पर n-2 है, बिकॉज ये न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 विल मेक इट -1, नीचे भी -1। तो अभी माइनस को बाहर निकाल लो ये, और यहाँ पर 1/x बचेगा, लिमिट आ जाएगी 1/r,
इनफाइनाइट वाली, इनफाइनाइट की जब लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, ये ऐसे आएगा 1/r माइनस 1/∞, तो ये 0 हो गया, तो ये आ गया डेरिवेशन। ठीक है, तो यहीं तक तुम्हें मेन पॉइंट यहीं तक है। तो व्हाट वी डिड, हमने स्मॉल अमाउंट के लिए किया और उसके बाद लिमिट लगा दी, इन्फिनिटी टू r तक निकल लिया। वेरिएबल कंडीशन है ना, तो इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमने सीखा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वर्क डन है, तो माइनस माइनस विल मेक इट प्लस, एक माइनस ये, एक माइनस ये, प्लस हो गया, तो दिस कम्स। और उसके बाद पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स निकाला, और चार्ज क्यू नॉट है, क्यू नॉट विल गो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यू कैन सी फुल व्यू डेरिवेशन का यहाँ से प्रूफ। इसका प्रूफ है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैन यू सी एट डिस्टेंस r। ओके, आई एम शोइंग यू हियर, केवल ये दिखा रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ। एन डिजिट पीरियड देखो, तो हमें क्यू इज द चार्ज, पॉइंट पी पर r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, जो कि इतना आ रहा है। तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पर फोर्स लिखा पहले, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट, फिर स्मॉल मूवमेंट किया उसका dx, तो वर्क डन निकाला एफ डॉट dx से, एफ की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये आ गया। और टोटल वर्क डन निकालना है, इनफाइनाइट से r तक लाना है, इनफाइनाइट से r तक लाना है। तो इंटीग्रेशन यू मस्ट नो, है ना, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन आएगा। और लिमिट लगा देंगे, तो 1/∞ 0 होता है, 1/r जो है रह जाएगा, और माइनस, इस माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज नेगेटिव, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हमने किया, तो उसको माइनस कर देंगे, तो एक्सटर्नल का मिल जाएगा, तो प्लस हो गया ये, बस। और फिर पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन ये निकाला हमने, और चार्ज क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो कैंसिल हो गया। देखो, टेस्ट चार्ज शुड नॉट अपीयर इन दिस, somebody may take test charge 1 coulomb, somebody may take 2 coulomb, so that is just testing and deriving the potential, not other job। तो ये फार्मूला डेराइव हो गया। ठीक है, that's all from my side। दिस पॉइंट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर थी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, इसलिए cos 0 आया, बोथ वर इन सेम डायरेक्शन।